Assalamu alaikum students, welcome to your class. I am your biology teacher Mrs. Saida Banu. Today we are going to start chapter number 15, which is about homeostasis, and today we have the first lecture of this chapter. Topics of today's lecture are introduction of homeostasis, definitions of homeostasis, osmoregulation, excretion, thermoregulation, and homeostasis in extracellular and intracellular level. Next is the term homeostasis. It is derived from two Greek words. Homo means the same or unchanging, and static, which means standing. In simplest form, it means standing the same. It is an organism's internal environment which stays the same. The internal environment refers to the conditions inside an organism. These conditions remain more or less constant despite changes such as pH or temperature in the outside environment. In practice, it comes down to providing a stable environment for the cells of the body. Students, all living organisms which live on the earth, they have to face different environmental conditions. Sometimes there are seasonal changes, and sometimes there is change in the availability of water. So the external changes in the environment, they are more drastic as compared to the internal environment. So to maintenance of internal environment in a narrow range which is suitable for the all activities of cell is called homeostasis. The other definition of homeostasis is that homeo means same and stasis means stand or stay. Maintenance of relatively stable internal environment of body coordinated in response in order to the maintain internal stability. And third definition of homeostasis is the protection of internal environment from harms of fluctuations in the external environment is termed as homeostasis, right? तो इसका ये मतलब हुआ कि जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसमें फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, और वो फ्लक्चुएशन हमेशा जो है या जो चेंजेस आती हैं वो सूटेबल नहीं होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, राइट. समटाइम्स दे आर हार्मफुल, दे आर नॉट इन टॉलरेबल रेंज. सो the living organism, they face these changes and they try to maintain internal environment stable as compared to external environment to protect in cell or tissues of living organism and body of living organism protected from the harmful effects of these changes. So this mechanism is called homeostasis. नेक्स्ट इज़ होम्योस्टेसिस कंट्रीब्यूटेड टू एवोल्यूशनरी प्रोसेस. कि होम्योस्टेसिस जो है ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है. जैसे जैसे लाइफ की हमारी अर्थ पे एवोल्यूशन होती गई और एनवायरनमेंट्स भी चेंज होते गए, प्रिमिटिव एनवायरनमेंट से आजकल का एनवायरनमेंट जो वो चेंज है, तो उसकी वजह साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपने अंदर अडेप्टेशंस की कि वो चेंज एनवायरनमेंट में सर्वाइव करें, और उसके लिए उन्हें डिफरेंट होम्योस्टेटिक मैकेनिज़म्स जो हैं वो अडॉप्ट करने पड़े. ईच ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज़ हैज़ अस्यूम्ड इन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री a specific set of internal environment at various levels of organization suitable to its surrounding, that is external environment. कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या स्पीशीज़ हैं, उन्होंने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कुछ इस तरह का अपना इंटरनल एनवायरनमेंट सेट कर लिया है कि वो अपने डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे अपने सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट, अपने टिश्यूज़ का इंटरनल एनवायरनमेंट, अपने ऑर्गन्स के इर्द गिर्द का इंटरनल एनवायरनमेंट इस तरह से सेट कर लिया है कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस भी आती हैं तो उनके इफ़ेक्ट की वजह से इंटरनल एनवायरनमेंट में बहुत माइनर चेंजेस आती हैं, और वो एक टॉलरेबल रेंज में इंटरनल एनवायरनमेंट रहता है. और टॉलरेबल रेंज में रखना किस वजह से ज़रूरी है कि द लिविंग प्रोसेसेस इन द सेल डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स. कि जितने भी लिविंग प्रोसेसेस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, वो सारे जो हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स, राइट. दीज एंजाइम्स वर्क बेस्ट इन स्पेसिफिक कंडीशंस सच एज दोज ऑफ द टेम्परेचर एंड पीएच. Any change in these conditions affect the function of enzymes and may lead to the death of cells or ultimately the whole organisms. तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था
एंजाइम्स वाले चैप्टर में, ईच एंजाइम रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग. सो the internal environment provides enzymes a suitable environment for its proper functioning. So if there is change in the internal environment, it affects the activity of enzymes. So living organisms maintain the internal environment at optimum level for the proper functioning of these enzymes. If there is a drastic change in the internal environment of the organism, is causes denaturation of enzymes, and due to denaturation of enzymes, life is not possible, or the living processes of that cell or that organism will be affected. This is why the internal environment needs to be regulated and kept constant. के अब इस वजह से कि एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उन्हें सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, प्रॉपर फंक्शन के लिए इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स. In fact, the internal conditions are not absolutely constant but allowed to vary within a narrow limits. Human body temperature, for example, varies between 36.1 to 37.8 degrees centigrade. The average temperature is usually expressed as 36.8 degrees centigrade. जब इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस तो होती हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं होती जितनी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रही हैं. जैसे कि आजकल हमारे सराउंडिंग का एनवायरनमेंट जो है, गर्मियों का मौसम है तो हमारा टेम्परेचर इर्द गिर्द का तो 45 से भी अबव चला जाता है, ठीक है. लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कितना रहता है, एक टॉलरेबल रेंज में रहता है जिसमें एंजाइम्स प्रॉपर फंक्शन कर सकें. और वो किस रेंज क्या है, 36.1 टू 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा इंटरनल टेम्परेचर चेंज नहीं होता, 37.8 से ज़्यादा नहीं जाता और 36.1 से कम नहीं होता. और नॉर्मल जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर है वो हमारा 36.8 होता है. तो अगर इस रेंज में बॉडी रहेगा तो हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शन करेगा. अगर टेम्परेचर जो है इससे ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि फ़ीवर में होता है कि डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो पूरे बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो इफ़ेक्टेड हो जाते हैं. और अगर इस एक रेंज से ज़्यादा फ़ीवर हो जाए तो क्या होता है, डेथ हो जाती है. किस वजह से, कि हमारे एंजाइम्स की डीनेचरेशन होती है. तो जितने भी लिविंग प्रोसेसेस हैं उनको एंजाइम्स कंट्रोल कर रहे हैं, और इन एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए, स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन चाहिए डिफरेंट मेटाबोलाइट्स की और वाटर की. तो इस चीज़ को मेंटेन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आती भी हैं तो उसको वो रेजिस्ट करते हैं ताकि उनका इंटरनल जो प्रॉपर फंक्शंस हैं वो कंटिन्यू रहें. नेक्स्ट इज़ द फैक्टर्स होम्योस्टैटिकली रेगुलेटेड, के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो होम्योस्टेसिस के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं. फर्स्ट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, के जितने भी न्यूट्रिएंट के मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को, हमारे सेल्स को चाहिए, उनकी कंसंट्रेशन मेंटेन की जाती है. कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और जितनी गैसेज हमारे बॉडी में चाहिए कंज्यूम होती है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, तो उसकी कंसंट्रेशन को भी मेंटेन किया जाता है. कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, और वेस्ट जितने भी मटेरियल हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गई या कोई और वेस्ट मटेरियल, टॉक्सिन्स वगैरह हमारे बॉडी में, उनकी कंसंट्रेशन मेंटेन की जाती है. पीएच के लेवल को मेंटेन किया जाता है. कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, साल्ट एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स इज़ आल्सो मेंटेन्ड, एंड टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड, एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ वाटर एंड solvents and solutes is maintained. First topic is osmoregulation. Osmoregulation means regulation or maintenance of water and solute concentration within the body of living organism and within the cell of the living organism. Definition is the maintenance of water and solute concentration within the body of organism with respect to external environment. के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन 60% तक, ह्यूमन बॉडी में कितनी है, 60% तक है. तो इस कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कभी वाटर जो है वो अबंडेंट सप्लाई में होता है, कभी जो है वो शॉर्ट सप्लाई में होता है, लेकिन बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर और सेल्स की सराउंडिंग में वाटर की एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन मेंटेन की जाती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन.
Second definition is maintenance of constant osmotic pressure in the fluids of an organism by the control of water and salt concentration. कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है फ्लूइड्स का उसको मेंटेन किया जाता है. और किस तरह से मेंटेन किया जाता है कि वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन. कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम फास्टिंग करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा वाटर ड्रिंक कर लेते हैं सहरी के टाइम में, तो उस वक्त क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है तो वो फ़ौरन ही बॉडी से रिमूव होना शुरू हो जाता है. किडनीज़ हमारे एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करते हैं. फ्लडिंग हो जाती है ना बॉडी में वाटर की ओवर ड्रिंकिंग की वजह से. लेकिन जिस वक्त इवनिंग का टाइम होता है उस वक्त वाटर की शॉर्टेज होती है, तो उस वक्त क्या होता है, हमारे किडनीज़ जो हैं वो यूरिन कम प्रोड्यूस करते हैं. किस वजह से, कि उन्होंने नाइट्रोजन वेस्ट को तो रिमूव करना है, साथ साथ उन्होंने ऑस्मो रेगुलेशन भी करनी है, हमारे बॉडी में वाटर की कंसनट्रेशन को मेंटेन करना है. तो अगर वाटर की अवेलेबिलिटी शॉर्ट है तो उस वक्त क्या होगा कि कंसनट्रेटेड और स्मॉलर क्वांटिटीज़ में यूरिन प्रोड्यूस होता है ताकि मेंटेन रहे वाटर की कंसनट्रेशन विद इन द सेल्स एंड सराउंडिंग द सेल्स. और अगर अबंडेंट सप्लाई है वाटर की तो फिर क्या होगा, हम डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं और लार्जर वॉल्यूम में प्रोड्यूस करते हैं ताकि एक्स्ट्रा वाटर बॉडी से रिमूव हो जाए. इसी तरह से जितने भी प्लांट्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं या बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो भी बॉडी से वाटर को रिलीज़ कर देते हैं अगर अबंडेंट सप्लाई हो वाटर की, और अगर शॉर्ट सप्लाई हो तो फिर वो वाटर की रिलीज़ को कम कर देते हैं. नेक्स्ट इज़ द थर्मोरेगुलेशन. Thermoregulation means maintenance of internal temperature within a tolerable range with respect to the changing external environment. कि अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग में टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है. सर्दियों में बहुत कम टेम्परेचर हो जाते हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाते हैं, राइट. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर बाय द प्रोसेस ऑफ थर्मोरेगुलेशन एट टॉलरेबल रेंज. कि वो वाली रेंज जिसमें उनके एंजाइम्स जो हैं वो प्रॉपर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें, तो वही टॉलरेबल रेंज होगी. अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर या कम हो जाएगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो जाएगी, तो ये टॉलरेबल रेंज नहीं होगी. नेक्स्ट इज़ द एक्सक्रीशन. Excretion is the mechanism which eliminates the metabolic waste, especially nitrogenous waste. कि हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, और मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में डिफरेंट मेटाबोलाइट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं और वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं. तो अब ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है जो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं, कुछ जो है उनमें से वेस्ट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, उनको फ़ौरन ही बॉडी से रिमूव किया जाना होता है. तो इस प्रोसेस के लिए स्पेशली ये जो वर्ड है एक्सक्रीशन का, ये यूज़ होता है नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए, विच आर टॉक्सिक फॉर आवर सेल्स. तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं मेटाबॉलिज्म से, किस चीज़ के, प्रोटीन्स के नाइट्रोजनस बेसिस जो कि डीएनए और आरएनए के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होती हैं या फिर अमीनो एसिड्स के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होते हैं. तो इनको बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं. और इसके अलावा जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में वो रिलीज़ होती है, तो उसका रिमूवल जो है बॉडी से वो भी एक्सक्रीशन ही होता है. अब नेक्स्ट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड. कि हमारे जो बॉडी है उसमें वाटर हम कहते हैं 60% है, तो ये वाटर कहाँ पे होता है, इस वाटर में से 20% वाटर जो है वो हमारे बॉडी के सेल्स के इर्द गिर्द है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड. और 40% वाटर जो है वो हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर है. तो अब जो बॉडी के सेल्स के अंदर 40% है उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड. और जो सेल्स के बाहर है, जो कि सराउंडिंग में है सेल्स के, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. और ये फ्लूइड होता क्यों है कि आप लोगों ने एवोल्यूशन में पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ है उस पर लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई थी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुए, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट हुए. और लाइफ की ओरिजिन कहाँ पे हुई थी, वाटर में. अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो वाटर से
मटेरियल्स की एक्सचेंज करते थे, न्यूट्रिएंट्स वाटर से लेते थे, अपने वेस्ट जो थे वो वाटर में रिलीज़ करते थे, ऑक्सीजन वाटर से लेते थे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में रिलीज़ करते थे। कि उनमें ये मैकेनिज़्म था कि वो वाटर से ही एक्सचेंज कर सकते थे मटेरियल की, न्यूट्रिएंट्स की, गैसेस की और वेस्ट की। तो अब जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थे वो इवॉल्व हुए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ सेल्स जो आउटसाइड स्पेस में थे वो उनका तो डायरेक्ट कांटेक्ट था सराउंडिंग वाटर से या सी वाटर से, लेकिन जो डीपर लेयर्स में थे उनका तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था वाटर के साथ जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे थे। तो अब उन्होंने गैसेस की भी एक्सचेंज करनी थी, न्यूट्रिएंट्स भी लेने थे और वेस्ट भी रिमूव करने थे। तो एवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ कि मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल्स की सराउंडिंग में भी फ्लूइड होता है, और वो फ्लूइड जो है वो किस प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। अब इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है इसको ही हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है इसकी भी 2 टाइप्स हैं। एक जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है और दूसरा क्या है जो सेल्स के सराउंडिंग में टिश्यू फ्लूइड है। तो उसको 15% जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसका 15% इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो कि टिश्यू फ्लूइड जो सेल्स की सराउंडिंग में है, और 5% जो है ये हमारे ब्लड का प्लाज्मा होता है। ये डायग्राम है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड किसे कहेंगे और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड किसे कहेंगे। तो अब जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर जो एनवायरनमेंट है, जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो उनका साइटोप्लाज्म जो है वो एक एक्वस सॉल्यूशन है। वाटर के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो डिज़ोल्व फॉर्म में हैं, और जितने भी आप लोगों को पता ही है कि एंजाइम्स जो हैं वो एक्वस एनवायरनमेंट में एक्टिव होते हैं, यानी वाटर के अंदर एक्टिव होते हैं और ड्राई कंडीशन में इनएक्टिव होते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, सेल्स के अंदर, और सेल्स के अंदर जो है वो एंजाइम उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब सेल्स के अंदर एक फ्लूइड होता है, वाटर होता है, जो कि टोटल जितना भी हमारे बॉडी में वाटर है 60% वाटर है ना, ड्राई वेट को निकाल दें 40% ड्राई वेट है, 60% वाटर है। तो अब 60% में से 40% वाटर कहाँ पे है, हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब जितने बॉडी के सेल्स हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो सर्वाइव ही वाटर में करते हैं, तो वो उनका तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो वाटर है, एक्वस एनवायरनमेंट है, तो उसके साथ वो मटेरियल की एक्सचेंज करेंगे, उसके रेफरेंस से अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करेंगे। लेकिन हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो भी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। फिर उसके बाद जो उनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें जो वाटर है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट बनाता है, और उस एनवायरनमेंट में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी बनता है, तो वो बॉडी भी अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की निस्बत इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। Students, that's all from today's lecture. Allah Hafiz.